Class 11 Physics Unit 1st. So you are welcome in class 11. Now we start Physics class 11. Okay. So hope you are in class 11. Then you will study regularly. I will teach Physics chapter by chapter systematically. After that we can solve NCERT questions. Then now this chapter Unit 1 Physical World and Measurement. एनसीईआरटी देखोगे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. मेजरमेंट किसको मेजर करोगे? फिजिकल क्वांटिटी को. किस यूनिट में? दैट यू विल स्टडी. सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. व्हाट इज फिजिक्स? इन द होल यूनिवर्स व्हाटएवर यू आर सीइंग नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन नेचर नेचुरल फेनोमेना, वी स्टडी इन फिजिक्स or we measure. So here physics definition you can say physics is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. That is you can say it is the science of measurement or exact science or perfect science. So this is the physics is the measurement of science. Science जो भी पढ़ते हो उसको हम जो भी physical quantity उसको हम मेजर करते हैं. लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, व्हाटएवर वी आर स्टडिंग देन वी कैन मेजर, हम नापते हैं उसको. नाउ ए टर्म यू कैन सी फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी. हम किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे ये है, इसको स्टिक है, इसको क्या कहते हैं? मेजर करते हैं. टेप लोगे और मेजर करना शुरू करोगे. 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, व्हाटएवर यू आर सीइंग. सो लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so momentum, these things we are measure, these are the physical quantity we can measure. Physical quantity or classification of physical quantity we can divide into two parts: fundamental physical quantity or base quantity, or derived physical quantity. First try to understand fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity है, the fundamental quantity are those quantity which are independent of each other. ये एक दूसरे से independent है, कोई relation नहीं है. और ये टोटल अर्लियर इट वाज लेंथ, मास, टाइम, 3 क्वांटिटी था. बाद में इसको और इंक्रीज किया गया, कुछ क्वांटिटी को इंक्रीज किया, 4 क्वांटिटी को. नाउ टोटल देयर आर 7 बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसके अलावा जो भी है सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. द डेफिनेशन यू कैन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड fundamental quantities or fundamental physical quantity. There are 7. क्या होगा? Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. Luminous intensity there are 7. जैसे light है, light देख रहे हो, इसका क्या है? Whenever you will go closer to the light, to source of light, then intensity will increase. Or if you are going away, then luminous intensity will decrease. So this you will study unit is candela. इसका अब क्या होगा कि इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है they all are known as derived physical quantity. Only 7 quantity, these 7 are the fundamental physical quantity because they are independent to each other. इसके अलावा जो भी है सभी derived physical quantity, they all are derived from fundamental physical quantities. Now derived physical quantity, any physical quantity which can be derived from fundamental physical quantities by multiplying or dividing them is called derived physical quantity. For example, यानी 7 physical quantity जो है they are fundamental physical. उसके अलावा जितना भी हमारा physical quantity है
दे ऑल आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम लोग डेराइव करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस लेंथ कहां से आता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, टाइम कहां से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। अब ये वॉल्यूम है, यहां पर क्या किया हमने, डिवाइड किया डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड है, डिवाइड करके स्पीड मिलता है। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। मास कहाँ होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम भी कहाँ से मिला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। अब एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या फॉर सिंप्लिसिटी ए इज इक्वल टू वी बाई टी। वी स्पीड, स्पीड वेलोसिटी कहाँ से आया, यहाँ से आया। टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये मोमेंटम है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास कहाँ से मिला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड कहाँ से मिला, ये फंडामेंटल से हम डेराइव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी। 7 फिजिकल क्वांटिटी दे आर फंडामेंटल। इसके अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, दे ऑल आर डेराइव्ड। After that you will study unit and fundamental and derive units. After that system of units.